Hello everyone, welcome to Study Capital. As you all know, we have started this new series for the love of books, and today we will be dealing with some Shakespeare retellings and also some of the important poems and novels that are important for all of you for your CUET PG entrance examination. आप सब लोगों ने सुना होगा शेक्सपियर को थ्रू आउट एजेस कई सारे लोगों ने उनके वर्क्स को रीटेलिंग्स प्रोवाइड की हैं, कई सारे लोगों ने हैप्पी एंडिंग्स दी हैं. जैसे रेस्टोरेशन टाइम वॉज अ टाइम व्हेन शेक्सपियर वॉज वेरी अनपॉपुलर, एंड एट दैट टाइम देयर वर राइटर्स. There is one poet laureate known as Nahum Tate, who was also the third poet laureate of England. He basically, what he did, he retold the story of King Lear with a happy ending, and that became very famous. Not just this, but writers like, there are so many writers who have started this tradition of translating Shakespeare in a, retellings of Shakespeare in a very different, in different languages, and in also with different point of views. जैसे आपने फैमिली शेक्सपियर के बारे में सुना होगा. पोप ने शेक्सपियर का एडिशन किया था, विच वॉज एक्चुअली नॉट अ गुड ट्रांसलेशन एट ऑल, और इसी वजह से थियोबॉल्ड वॉज द पर्सन हु रोट अ वर्क विच इज़ वेरी फेमस, शेक्सपियर रीस्टोर्ड, राइट. तो और उसके बाद पोप वॉज अ ग्रेट सटायरिस्ट. ही ऑल्सो सटायर दैट पर्टिकुलर राइटर नोन एज थियोबॉल्ड इन हिज वेरी फेमस वर्क कॉल्ड द डंसियार्ड. तो ये काफ़ी पुराना ट्रेडिशन है. इन 17th सेंचुरी, इन 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी लगातार आपको कई सारे शेक्सपियर के ट्रांसलेशंस मिलेंगे. टुडे we will be talking about one press which is known as Hogarth Press. आप Hogarth Press के बारे में जानते होंगे क्योंकि Hogarth Press was the press which was founded by famous writer of modern age Virginia Woolf and her husband Leonard Woolf in 1917. So what they did, they started a kind of retellings of William Shakespeare. तो ये Hogarth Press का एक तरीके से इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया जहाँ पे इन्होंने पैसा देना स्टार्ट किया टू राइटर्स टू राइट एक्चुअली शेक्सपियर्स रीटेलिंग इन फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज. तो कई सारी आपको रिटेलिंग्स मिलेंगी, जैसे जिसमें से जो फेमस है विंटर्स टेल की रिटेलिंग है, मर्चेंट ऑफ वेनिस की रिटेलिंग्स है, मैकबेथ, किंग लियर, टेम्पेस्ट, और बहुत जितने भी बड़े बड़े शेक्सपियर के प्लेस हैं उन सारे प्लेस की आपको रिटेलिंग्स मिलेंगी. और CUET PG एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में ऐसे क्वेश्चंस आजकल वो एग्जाम में पूछना शुरू करती हैं. तो आप इसको डेप्थ में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा होगा शेक्सपियर के इस कॉन्सेप्ट के थ्रू उन्होंने कई सारे शेक्सपियर की रिटेलिंग्स करवाई हैं, जिसमें से ये कुछ फेमस रिटेलिंग्स हैं, जैसे द गैप ऑफ टाइम by The Gap of Time by Janet Winterson, which is a retelling of The Winter's Tale, right? Shylock is my name. You all know Shylock is a character from Merchant of Venice, a very famous Jewish character. This is written by Howard Jacobson, which was an interpretation of The Merchant of Venice, right? Same, Vinegar Girl by Annie Taylor. Hack Seat, we will be dealing with Hack Seat because it's very important, written by a very important Canadian writer called Margaret Atwood, right? Twice Booker Prize awardee winner. We have Macbeth by Joe Nesbo. This was the question that they have asked in 2020 DU entrance examination, right? Chinese interpretation of Macbeth. Then we have Dunbar by Edward, New Boy by Tracy Chevalier, and you will get so many other retellings of Shakespeare as well. Then why Hacksheet is most important in all these retellings that we are dealing today is because of the fact that it is written by a writer who was awarded with Booker Prize twice, once in 2000 and another in 2019. Margaret Atwood, a Canadian writer, very famous novelist, very famous critic. She has also written some very famous poetries, essays altogether, right? So Margaret Atwood is important because she has won 2 Booker Prizes for one novel, that is The Blind Assassin, and another which is The Testaments, right? The Testament, it got award of Booker Prize in 2019 and it was shared, right? तो आप comment section में बताइएगा कि 2019 का जो Booker Prize था वो मार्गरेट एडवर्ड के अलावा और किस राइटर को मिला था, राइट? तो ये हैक्सीट बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है क्योंकि ये लिखी गई है, इट्स अ रीटेलिंग ऑफ शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट, राइट? आप जब पढ़ोगे इसको तो देयर इज वन कैरेक्टर व्हिच एक्चुअली यू विल फील लाइक दैट दिस स्टोरी इज एक्चुअली कैलिबन स्टोरी, राइट? तो कैलिबन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको द टेम्पेस्ट पढ़ने को मिलेगा. उसमें जो कैरेक्टर है वो रिप्रेजेंट करता है, राइट? वेली ये बहुत सबल तरीके से रीटेलिंग को इसको लिखा गया है. दिस इज ऑल्सो दिस पर्टिकुलर नॉवल द टेम्पेस्ट हैक्सीट बाई मार्गरेट एटवुड. इट्स ऑल्सो कंसिडर्ड एज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट ग्राहम वोल्फ सेड, थिएटर फिक्शन, राइट? थिएटर फिक्शन दैट मीन्स ड्रामा फिक्शन. तो अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ग्राहम वोल्फ कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं. पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप याद रखिएगा. ग्राहम वोल्फ का थिएटर फिक्शन का एक कॉन्सेप्ट है और उन्होंने इस नॉवेल को जिसका नाम है हैक सीट
बाय रिटन बाय मार्गरेट एटवुड, उसको एग्जाम्पल दिया है ग्राहम वोल्फ ने थिएटर फिक्शन के नाम से, राइट। तो ये काफ़ी सारी रिटेलिंग्स मार्गरेट एटवुड ने लिखी है। मार्गरेट एटवुड, शी इज़ वेरी फेमस फॉर सो मेनी वर्क्स, राइट। आपने नाम सुना होगा हैंडमेड्स टेल का, राइट। हैंडमेड्स टेल बहुत फेमस डिस्टोपियन नॉवल है, राइट। 2020 के ड्यू एंट्रेंस एग्जामिनेशन में उन्होंने 4 ऑप्शंस दिए थे और पूछा था कि कौन सी 2 नॉवेल्स डिस्टोपियन फिक्शन का के एग्जाम्पल्स हैं, और मार्गरेट एटवुड के वर्क्स उसमें दिए हुए थे। तो अपेरेंटली मार्गरेट एटवुड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राइटर ऑल टुगेदर, राइट। तो इसके बारे में थोड़ा सा और डेप्थ में आप पढ़िएगा, थोड़ी सी और जानकारी लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आना स्टार्ट हो चुके हैं, राइट। दैट द फर्स्ट थिंग दैट वी आर डीलिंग टुडे। अनदर थिंग, a poem. I will suggest you a literary term today, which is garrison mentality. Again, we are dealing with Margaret Atwood. Margaret Atwood is a Canadian writer, and in Canadian writer you will find some literary characteristics which are very common. This is garrison mentality. Garrison आपको पता होगा क्या होता है? ट्रूप्स होते हैं, राइट। जो आप अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे, इंडियन हिस्ट्री पढ़े होंगे, तो आपने देखा होगा कैसे महलों के बाहर कई सारे ट्रूप्स पहले रखे जाते थे, राइट। जब ईस्ट इंडिया कंपनी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया समवेयर अराउंड 1600, तो उस टाइम पे वैसे सिमिलरली कैनेडियन राइटर्स और कैनेडियन लिटरेरी फिल्म्स में, कैनन्स में आपको एक तरीके की इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा इन दोज राइटर्स। दिस कॉन्सेप्ट वाज एक्चुअली गिवन बाय नॉर्थरोप फ्राई, अ वेरी फेमस कैनेडियन लिटरेरी क्रिटिक। यू माइट हैव हर्ड वर्क्स लाइक एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म, राइट। काफ़ी फेमस आर्केटिपल क्रिटिसिज्म के अंदर वर्क है जो फ्राई ने ही लिखा है। फियरफुल सिमेट्री, राइट, विच इज़ अ रीइंटरप्रिटेशन ऑफ विलियम ब्लैक्स पोएम विच वॉज ऑल्सो रिटन बाई नॉर्थरोप फ्राई। इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, इन ऑर्डर टू क्लियर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो ये क्या है, गैरिसन मेंटालिटी एक्चुअली क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है, राइट। तो ये एक तरीके का फियर है, एक तरीके की फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, फीलिंग ऑफ इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स इन कैनेडियन लिटरेचर ऑल टुगेदर। कैनेडियन राइटर्स ऐसी फीलिंग रहते थे, स्पेशली टुवर्ड्स कंट्रीज लाइक अमेरिका। कई सारी टेंडेंसीज हैं, अगर आप इसको पढ़ोगे, कि वो राइटर्स क्या फील करते हैं, किस तरीके से लैंडस्केप के टुवर्ड्स उनका इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स दिखता है, एंड दिस इज वेरी मच विजिबल इन देयर वर्क्स एज वेल। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राइट। नेशनल साइकी को रिप्रेजेंट करता है, एक इंप्रेशन देता है कि कैसे जो इन्वायरमेंट है टुवर्ड्स, तो जो पूरे कंट्री का इन्वायरमेंट है वो उनकी साइकी पे कैसे, नेशनल साइकी पे कैसे इन्फ्लुएंस करता है, और डायरेक्टली उसका इन्फ्लुएंस आपको लिटरेचर के अंदर भी देखने को मिलता है। कई सारे वर्क्स लिखे गए हैं, राइट। सरफेसिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क बाय मार्गरेट एटवुड, और आप पाओगे सरफेसिंग में भी ये कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। करेक्टर्स हैं वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करते हैं ब्रिटिश करेक्टर्स के सामने, राइट। तो गैरिसन मेंटालिटी, रिमेंबर दिस वर्क, दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय फ्रायर इन हिज बुक द लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ Canada, right, the literary history of Canada. And very important thing, Margaret Atwood actually also talked about this particular term in her very famous work called Survival, a thematic guide to Canadian literature, right। आपने पढ़ा होगा कई सारी गाइड्स होती हैं, कई सारे इंटरप्रिटेशन होते हैं ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर, ऑफ अमेरिकन लिटरेचर, बट देयर आर ऑल्सो सम राइटर्स हु आर राइटिंग guides of different countries। तो ये thematic guide to Canadian literature which is a work Survival which is written by Margaret Atwood, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने इस टर्म की डेवलपमेंट को सजेस्ट किया है। इन्होंने सजेस्ट किया है कि कैसे कैनेडियन जो राइटर्स हैं वो इनसिक्योरिटी फील करते हैं टुवर्ड्स द एटमॉस्फेयर दैट इज गिवन बाई द होल नेशन। तो ये जो स्पेशली डोमिनेंट कंट्रीज लाइक यूएस, और ये फिजिकल लैंडस्केप पे नहीं, मेंटल साइकी पे कैसे किसी राइटर को इम्पैक्ट करते हैं, इसके बारे में मार्गरेट एटवुड ने अपने वर्क में डिस्कस किया है, राइट। तो इसके बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करिएगा। मार्गरेट एटवुड शी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइटर, आपने अभी 2 चीज़ें इनके बारे में डिस्कस की, ठीक है। देन हम बात करेंगे पोइट्री के बारे में। पोइट्री, डायलन थॉमस वेरी इंपॉर्टेंट राइटर ऑफ 1940s, राइट। न्यू अपोकलिप्स पोइट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है डायलन थॉमस। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1930s में जब ऑर्डन ग्रुप आया था, लेफ्ट विंग पोइट्री उनको बोलते थे, जो उनकी थीम्स थी, 1940s के राइटर्स ने क्या किया था, उसके अगेंस्ट आके राइटिंग्स लिखना शुरू किया था। डायलन थॉमस इज वन ऑफ देम। बहुत से क्वेश्चंस आते हैं न्यू अपोकलिप्स पोइट्री की जो एंथोलॉजीज हैं वो किन्होंने दी है, 3-4 एंथोलॉजीज हैं। न्यू हॉर्समैन, एक न्यू अपोकलिप्स पोइट्री करके ही एंथोलॉजी है। तो उस टर्म के बारे में पढ़िएगा, उस मूवमेंट के बारे में पढ़िएगा कि ये मूवमेंट एक्चुअली क्या है, कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ, कौन कौन से राइटर्स जो है वो इससे एसोसिएटेड है। आज हम बात करेंगे डायलन थॉमस की पोएम जो बहुत फेमस है, डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट, राइट। डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट, इट्स ऑल्सो अ वेरी फेमस एग्जाम्पल ऑफ अ फॉर्म विच इज नोन एज विलेनिल, राइट। विलेनिल क्या होता है,
एक 19 लाइन्स की पोएम होती है जिसमें 3-3 लाइन के 5 स्टैंजा होते हैं। 3 लाइन के स्टैंजा फॉर्म को हम टेरसेट बोलते हैं, राइट। तो 3 लाइन के 5 स्टैंडा एंड लास्ट में जो है क्वाट्रेन होता है ऑफ 4 लाइन, सिंगल स्टैंजा ऑफ 4 लाइन। तो टोटल 19 लाइन्स होती हैं। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्म है ये क्यों? क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो पहली जो 2 रिपीटिंग राइम्स होती हैं, इस तरीके से स्ट्रक्चर किया जाता है कि 2 रिपीटिंग राइम्स आपस में 2 रेफरेंस क्या होते हैं, आपस में मूव करते रहते हैं। जैसे आपको देखने को मिलेगा जब आप इस पोएम को पढ़ोगे तो आप देखोगे डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट, इट्स वेरी फेमस पोएम। आप जब ध्यान से देखोगे तो पहली लाइन जो है डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट, वो आपको रिफ्रेन मिलेगा दूसरे पैराग्राफ के लास्ट लाइन में। वैसे ही पहले पैराग्राफ की जो लास्ट लाइन है रेज रेज अगेंस्ट द डाइंग ऑफ द लाइट, वो आपको मिलेगा उसके अगले वाले में। तो ये क्या है, ये इसी तरीके से मूव करेगा। देखिए फिर से फर्स्ट लाइन डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट, और फिर से लास्ट लाइन सेकंड मतलब पहले पैराग्राफ की लास्ट लाइन जो है वो रिपीट करेगी। इस तरीके से क्या होता है, रिपीट होता है। और लास्ट पैराग्राफ में आप देखोगे पहली और तीसरी दोनों ही लाइन आपस में क्या कर रही हैं, नो रिपीट हो रही हैं। तो इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं विलिनल स्टैंजा फॉर्म, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली लाइन फर्स्ट स्टैंजा की वो सर्व करती है एज द लास्ट लाइन ऑफ द सेकंड एंड फोर्थ स्टैंजा, एंड द थर्ड लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा इट सर्व एज द लास्ट लाइन ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ स्टैंजा, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्टैंजा फॉर्म है ऑल टुगेदर आपके लिए। इस स्टैंजा फॉर्म के बारे में आप थोड़ा सा और पढ़िएगा और एग्जाम्पल्स ढूंढिएगा कि ये कौन सी और पोएम्स हैं अदर देन डायलन थॉमस डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट। इसके अलावा और कौन सी पोएम्स हैं जो इस स्टैंजा फॉर्म में लिखी गई है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली जहां पे वो पूछते हैं कि ये पोएट्री जो है किस स्टैंजा फॉर्म में लिखी गई है। आपने पढ़ा होगा चौसेरियन स्टैंजा फॉर्म, जिसको राइम रॉयल भी बोलते हैं, ओटावा रीमा जिसको थॉमस वेट ने इंट्रोड्यूस किया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन इंग्लैंड, राइट। उसके बाद आपने पढ़ा होगा शेक्सपियर ने जो सोनेट स्टैंजा फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया, राइट। स्पेंसर ने सोनेट वेराइटी के बारे में बात की, स्पेंसर ने स्टैंजा फॉर्म के बारे में भी डिस्कस किया। तो कई सारे इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ प्रोसिडी, राइट, जहाँ पे आप मीटर को, राइम को, स्टैंजा फॉर्म को, वर्स फॉर्म को पढ़ते हैं। तो आप उसके बारे में जब आप पढ़ें, कोई भी फॉर्म को पढ़ें, चाहे वो राइम रॉयल हो, चाहे वो ओटावा रीमा हो, चाहे विलिनल हो, या आजकल नए नए फॉर्म्स के बारे में दे हैव स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस लाइक लिमरिक, लाइक हाइकू। जब आप इसको पढ़ो तो लिटरेचर से एक दो एग्जांपल्स आप अपने दिमाग में हमेशा रिकॉल करते रहो, क्योंकि दे आर नाउ आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम देयर एज वेल। सो इट्स अ वेरी गुड पोएम, आई विल सजेस्ट यू टू रीड दिस। और इसके बारे में बताइएगा कि कौन कौन सी एंथोलॉजीज, न्यू एपोकलिप्स मूवमेंट ऑल टुगेदर, ये किन राइटर्स के अगेंस्ट आया था और क्यों आया था, इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ना, क्योंकि मूवमेंट से भी क्वेश्चंस पूछते हैं। मूवमेंट्स भी आपके जो है सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। तो ये पोएम के बाद हम डिस्कस करेंगे आज एक ड्रामा को जिसका नाम है ब्लिथ स्पिरिट बाय अ वेरी फेमस मॉडर्न ड्रामेटिस्ट नोएल कॉवर्ड, राइट। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? आपने ये टर्म सुना होगा कहीं पे, ब्लिथ स्पिरिट, वेरी फेमस, राइट। एक बहुत फेमस पोएम है बाय अ वेरी फेमस मॉडर्न रोमांटिक राइटर विच इज नोन पीबी शैली। पीबी शैली बहुत फेमस पोएट है, आपने पोएम पढ़ी होगी टू ए स्काईलार्क। टू ए स्काईलार्क का ओपनिंग लाइन है हेल टू दी ब्लिथ स्पिरिट बर्ड दाउ नेवर वर्ड्स related to bird, and you will, this is a very interesting poem and they ask lines from this particular poem as well। जो भी शैली की इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं जैसे ओड टू द वेस्ट विंड, ओड टू ए स्काईलार्क, ऐसे कई सारी पोएम्स उन्होंने लिखी है जहां से लाइंस उठा के वो डायरेक्टली एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नोएल कॉवर्ड ने कई सारे वर्क्स लिखे हैं जो एब्सर्डिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। जैसे आप प्राइवेट लाइफ्स पढ़ोगे इनका, या प्रेजेंट लाफ्टर पढ़ोगे, कई सारे वर्क्स इन्होंने डिस्कस किए हैं। उनमें से ही एक प्ले है ब्लिथ स्पिरिट, जिसका टाइटल कहाँ से आ रहा है? इसका टाइटल आ रहा है हमारी पोएम टू ए स्काईलार्क से, जो पीबी शैली ने लिखी है। इनके कई और इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, थोड़ी सी इनके बारे में इंफॉर्मेशन आप ले लेना। इनके एग्जाम में आपके इतने डेप्थ में नहीं जाते हैं कि इनकी वर्क्स की थीम से क्वेश्चंस पूछें, पर आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इनके टाइटल्स आते हैं। चाहे वो प्रेजेंट लाफ्टर हो, आप देखोगे ये टाइटल ट्वेल्थ नाइट से आ रहा है, राइट। ट्वेल्थ नाइट अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि एक कैरेक्टर के थ्रू एक लाइन बोली गई थी, ओपनिंग लाइन अगर आपको याद हो, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, राइट। उसी तरीके से एक और जो है एक आपको एक स्टेंजा मिलेगा उस वर्क में जहां से प्रेजेंट लाफ्टर का टाइटल भी आ रहा है, राइट। हे फीवर, प्राइवेट लाइव्स, डिजाइन फॉर लिविंग, प्रेजेंट लाफ्टर, ब्लिथ स्पिरिट, और ऐसे कई सारे और थिएटर वर्क्स हैं जो नोएल कॉवर्ड ने लिखे हैं, राइट। तो ये आप याद रखिएगा। ब्लिथ स्पिरिट एक कॉमिक प्ले है। जब इन्होंने डिस्क्राइब किया था इस प्ले को तो इन्होंने बताया था इट्स एन इम्प्रॉबेबल फार्स इन 3
एक्ट्स, राइट। तो 3 एक्ट्स में एक इम्प्रॉबेबल फार्स की तरह इसको, इस वर्क को इन्होंने क्या किया था, डिस्क्राइब किया था, राइट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे और कल के जो वीडियो आपको मिलेगा इसी चीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आप क्या करिएगा, जो भी हमने आज पढ़ा है इसके बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो हॉगवर्थ प्रेस है इसने कौन सी और रीटेलिंग्स कराई हैं, शेक्सपियर की रीटेलिंग्स कितनी हुई हैं थ्रू आउट, राइट। आपको फिल्म एडॉप्टेशंस मिलेंगे, आपको रीटेलिंग्स मिलेंगी। नेक्स्ट वीडियो जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे विथ एन ऑस्ट्रेलियन रीटेलिंग ऑफ टेम्पेस्ट। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन से ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं जिन्होंने टेम्पेस्ट का ऑस्ट्रेलियन रीटेलिंग लिखा था, राइट। तो इसके साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू। और ये वीडियो और जो हमारे पेड कोर्सेज हैं वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप पूरे कोर्स को पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।